السلام علیکم احباب، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ احباب، آج ہم آپ کے سامنے ایک کالج کی سچی کہانی لے کر آئے ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی سے محبت کا اظہار کیسے کیا اور لڑکی نے اس کے رد عمل اس کو کیسا جواب دیا اور لڑکے کو کیسا محسوس ہوا، اور ان سب کے بارے میں ہم آپ کو ایک سچی کہانی پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ہندوستانی ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود ریڈ کلر میں سبسکرپشن بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر نئی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ احباب، کبھی کبھی کچھ باتیں تکلیف دہ ضرور ہوتی ہیں، مگر سمجھ جانے کے بعد انسان ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بیوقوفی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ فرسٹ ایئر میں اسے ذرا سی غلط فہمی ہوئی کہ نائلہ اسے پسند کرتی ہے۔ پھر سیکنڈ ایئر میں تو اسے یقین ہی ہو گیا کہ وہ دل ہی دل میں اسے چاہتی ہے، اس لیے تو کینٹین میں اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتی ہے، نظر ملنے پر نظر جھکا دیتی ہے۔ جب دوستوں میں تذکرہ ہوتا تو عدیم فخر محسوس کرتا۔ دوست بھی بڑا چڑھا کر محبت کو بیان کرتے۔ آج تو نائلہ نے ایک نظر دیکھا ہے، چل ٹریٹ دے۔ آج تو نائلہ تیرے قریب سے گزری ہے، چل کچھ منگوا۔ مڈل کلاس بندے کے مڈل کلاس دوست کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عدیم بھی اپنی جمع پونجی دل کھول کر اپنے کنگلے دوستوں پر خرچ کرتا رہا۔ نام نائلہ کا اور کام نااہلوں کا، بس یہی سلسلہ چل نکلا تھا۔ ایک دن وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ عدیم نے ہمت باندھی اور نائلہ سے بات کرنے کا سوچا۔ خود اعتمادی اس کے نائلہ نے سموسوں کے ساتھ چٹنی کھا کر اس قدر بھری تھی کہ اسے لگا کہ آج نہ کہا تو جذبات کہیں کے نہ ہوں گے، تو اس نے اپنے دل کو تھاما اور سیدھا نائلہ کی طرف چل پڑا۔ برا یہ ہوا کہ کسی کمبخت نے کیلے کا چھلکا راستے میں پھینکا ہوا تھا۔ عدیم کی نظر نائلہ پر تھی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور سیدھا نائلہ کے پاؤں میں جا گرا۔ بہت سی فلمی سین اس کی نظر میں گھوم گئے۔ جہاں ہیرو ہیروئن کے اوپر جا گرتا ہے، یہاں مگر معاملہ ذرا سا مختلف تھا۔ ہیرو نے کیلے کے چھلکے کا کچومر نکال دیا، مگر ہیروئن کے جوتے تک سے نہ ٹکرا سکا۔ انتہائی شرمندگی سے اس نے نظریں اٹھا کر نائلہ کو دیکھا۔ یہ نام بھی ان کے کان میں اتفاق سے چلا گیا تھا جب اس کے دوست اسے پکار رہی تھی۔ نائلہ اور اس کی دوستوں نے ایک مسکراہٹ بھری نظر اس پر ڈالی اور اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، مگر اس کی مسکراہٹ اس کے گھٹنوں میں ٹھہر سی گئی۔ اس نے دل ہی دل میں شعر دہرایا کہ ابتدائے عشق سے ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ ہونے کیا والا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رگڑتا ہوا دوبارہ نائلہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح 2 سال سے اسے دیکھ دیکھ کر اور اس کے نام کی پارٹیاں دے دے کر دن گزار رہا تھا۔ ابھی وہ نائلہ کے سامنے کھڑا تھا تو نائلہ نے راستہ بدلنے کی کوشش کی تو اس نے دوبارہ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے کی کوشش کی۔ اس کی حرکت نائلہ کو ناگوار گزری۔ اس نے گھور کر پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے بھائی، ہم نے چھلکا نہیں پھینکا۔ چھلکا عدیم گویا بھول ہی چکا تھا کہ ابھی بھی وہ سجدہ ریز کیوں ہوا تھا۔ اس نے غور کرتے ہوئے اپنے نہ تو ذہن کو تکلیف دی، نائلہ کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کو سوچنے سے انکار کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ کوئی بات نہیں نائلہ۔ تعجب سے عدیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی ہمارا راستہ پھر کیوں روک رہے ہو، ہم نے چھلکا نہیں پھینکا۔ عدیم نے تھونک کو نگلا اور بالوں میں ذرا سٹائل سے ہاتھ پھیر کر کہا کہ وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ اس نے نظریں نائلہ پر یوں پیوست کی کہ نائلہ نے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا کہ کیسی بات کہنا چاہتے ہو۔ نائلہ کی دوست بھی تعجب سے دیکھنے لگی۔ عدیم نے دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ صرف آپ سے بات کرنی ہے۔ نائلہ نے لہجے میں سختی لاتے ہوئے کہا کہ بھائی مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ وہ لگاتار اسے بھائی کہہ رہی تھی، مگر اسے وہ لفظ سنائی نہیں دے رہا تھا جو وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔ عدیم نے پھر
धीरे से कहा कि मेरे दोस्त कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करती हैं। नायला ने हंस कर कहा कि ये गलत फहमी उन्हें क्यों कर हो गई है। अदीम ने संजीदगी से कहा कि आप हमेशा कैंटीन में मुझे देखकर हट जाती थी और आपका यूं जगह छोड़ देना। नायला लगातार हंसने लगी। उसे हंसता देखकर अदीम कुछ शर्मिंदा सा हो गया। नायला ने कुछ देर हंसने के बाद कहा कि मैं तो मच्छर को देखकर भी जगह छोड़ देती हूँ, इसका मतलब कि इससे मोहब्बत करती हूँ। अदीम ने मुंह बनाते हुए कहा कि वो कहते हैं ना कि आप मेरी तरफ देखती हैं, जैसे ही मैं देखता हूँ तो नजरें नीचे कर लेती हैं। लड़कियां नजर उसी को देखकर झुकाती हैं जिससे उन्हें मोहब्बत होती है। नायला ने तलख से कहा कि ये लड़कियां किस तरह और कैसे मोहब्बत करती हैं, इसके अलावा भी तुम लोग किसी चीज पर सर्च करते हो। उल्लू कहीं के। उल्लू तो फिर प्यारा होता है, तुम लोगों को तो उल्लू कहना उल्लू की तौहीन है। नायला ने धीरे धीरे मजीद कुछ बनबनाया मगर वो अदीम की समझ में न आया। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो कुछ अच्छी बातें नहीं कह रही। नायला जा चुकी थी। वो वहीं साकत खड़ा था और उसके अल्फाज को बार बार दोहरा रहा था जैसे कोई मैथ का सवाल समझा कर गई हो। समझ आने के बाद भी दिमाग उसका आदा करता रहे। अदीम के दोस्त इसके गिर्द गोल दायरे में खड़े थे। सब के सब यही जानना चाहते थे कि भाभी ने क्या कहा। अदीम सोच रहा था कि सच बोले या फिर हमेशा की तरह अपनी जमा करदा पैसों को इन नाम निहाद दानश्वरों के ऊपर खर्च कर दे, जिनको यकीन था कि नायला इनके दोस्त पर फिदा है। अदीम ने दिल में सोचा, पहाड़ में जाए ऐसी सच्चाई जो इज्जत का फलूदा कर दे। उनको आज फलूदा ही खिला देता हूँ। वो चुपचाप था। दोस्त इसे गुदगुदा रहे थे, अपने हाथों से नहीं अल्फाज से। कहाँ मिलने का प्रोग्राम बना? कहा क्या भाभी ने फोन नंबर लिया? आपने एक तो हद कर दी अदीम यार, वो जो केले का छिलका था उसकी मंसूबा बंदी तो तूने कहाँ की? अदीम को अपने घुटनों में दर्द महसूस हुआ, दिल का दर्द मगर कुछ ज्यादा था। उसके जज्बात और अब कड़वी सी दवाई में तब्दील हो चुके थे जिससे उसकी ख्वाहिश महसूस हो रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि यार इससे बात करके लगा वो मेरे मतलब की नहीं। सबने यक ज़बान होकर कहा कि क्या? अदीम ने परेशानी के आलम में इनकी तरफ देखा और कहा कि यार वो कह रही थी कि इसका निकाह हो चुका है। दूसरों की बीवी को देखना भी मैं गुनाह समझता हूँ। काश के पहले पता होता। काश इसके दोस्त खामोश थे। अदीम ने मुस्कुराने की कोशिश की और दुखी दिल से बोला, चलो ये सिलसिला खत्म होने की खुशी में तुम्हें आखिरी ट्रीट देता हूँ। इसके सब दोस्त चलाए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी यार लड़कियों की कमी है। शहजादा हमारा दोस्त अदीम। अदीम ने इस दानश्वर की तरह इनकी तरफ देखा। आज जब अदीम घर जा रहा था तो वो रास्ते में आने वाले दरख्तों को बेइख्तियार घूरता। अगरचे इसने उल्लू देखा हुआ था, फिर भी न जाने क्यों नजर दरख्तों की तरफ चली जाती। नायला की आवाज इसके कानों में बार बार सुनाई दे रही थी, तुम लोगों को उल्लू कहना उल्लू की तौहीन है। 2 साल के अरसे में इसने जो उम्मीदें नायला से लगा रखी थी, सब की सब एक सवाल ने खत्म कर दी। इसने कभी सोचा नहीं था कि वो इससे कहेगी कि मसला क्या है भाई। इसने उदासी से एक लंबी आह भरी। वो बस से उतरकर धीरे धीरे भारी कदमों के साथ चल रहा था कि एक लड़की ने पीछे से इसके सामने आते हुए कहा कि भाई गाड़ी का व्हील बदलने में मेरी मदद करेंगे? तो इसे नायला का भाई कहना याद आया। उसने दिल ही दिल में सोचा, गलत नायला नहीं थी, मैं गलत था। ये लड़कियां किसी तरह हर लड़के को भाई कह देती हैं, किस तरह हर लड़के को भाई कह देती हैं, समझ लेती हैं, मगर हम लड़कियों को बहन नहीं बना पाते। वो चुपचाप इस लड़की के पीछे पीछे चल दिया ताकि इसकी मदद करे। इसके दोस्त इसे कॉलेज में आने वाली नई लड़की की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो अब उल्लू बनने के लिए तैयार नहीं था। उसने इस खूबसूरत लड़की के पास से गुजर जाने के बाद मुस्कुरा कर कहा, नहीं यार मुझे पसंद नहीं आई। अब मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अगर किसी काबल बन गए तो खूबसूरत लड़कियों की कमी थोड़ी है, कोई ना कोई जरूर मिल ही जाएगी। अदीम के दोस्तों ने जबान होंठों पर फेरी और वो मुस्कुराते हुए बोले कि वाह यार
बहुत अच्छे। वो मुस्कुराता हुआ लाइब्रेरी चला गया। वहाँ बैठकर उसने पढ़ने की नाकाम कोशिश की। किताबों को देखते हुए उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी जिस पर मोहब्बत की नफ्सियात लिखा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि मोहब्बत की भी नफ्सियात होती हैं। अभी वो सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर हल्की सी आवाज़ ने व्हाट्सएप मैसेज शो किया। किसी ने वीडियो भेजी थी। उसने हैंड फ्री लगाई और वीडियो देखने और सुनने लगा। वीडियो अपनी ज़ात पर फोकस करने से मुतल्लिक थी। वो हंसा और दिल ही दिल में सोचा, हम सब जानते हैं मगर हम जान बूझकर अनजान बन जाते हैं ताकि खुद को खुशी दे सकें। अगरचे वो अच्छी तरह जानता था कि नायला को देखना, इसे घूरना किसी लिहाज से मुनासिब नहीं था, लेकिन वो ऐसा करते हुए अपने दिल को तसल्ली दे देता कि वो कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। इसके दोस्तों ने जब इसे ऐसा करते देखा तो किसी एक ने भी इसे गलत काम से नहीं रोका। वो भी इसकी तरह जानते थे कि अपने नफ्स की तस्कीन कर रहे थे। हम सब यही तो करते हैं। अपना जायजा लेने का हमारे पास वक्त नहीं होता और हम दूसरों की नजरों में मुस्कुराहट और चाल तक का तज्जिया करने में फकत चंद मिनट लगा लेते हैं। इसने अफसरदगी से एक आह भरी। हम अपने साथ एक मुद्दत से होते हैं मगर हम अपने जज्बात को, अपने एहसासात को ना ही समझने की कोशिश करते हैं, ना ही दुरुस्त करने की कोई फिक्र करते हैं। हमें हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती है। पिछले साल से जब भी वो शीशे में कॉलेज आने से पहले खुद को देखता तो ये नहीं सोचता था कि वो क्या लग रहा है, मगर वो ये तस्वर करता था कि नायला उसको देखकर क्या कहेगी। इसने अपनी आंखों को बंद करते हुए एक लंबी आह भरी। मैं क्या बेवकूफ था, मेरे दोस्त भी सारी सच्चाई समझते हैं, फिर भी इन्होंने भी झूठ बोला, मैंने भी झूठ बोला। मिलता वही है जो कुछ हम दे रहे होते हैं, हमारा अपना आप ही हमारे पास लौटता है। काफी वक्त गुजर चुका था। वो लाइब्रेरी से उठकर बाहर आ गया। उसके दिल में बार बार यही अल्फाज आ रहे थे कि यही हमारा सबसे बड़ा मसला है, खुद को छोड़कर सब पर नजर रखना और झूठ बोलना कि हम दूसरों के दिल की बात जानते हैं, जबकि खुद को भी न जानने वाला किसी दूसरे को खाक जानेगा। इसकी नजर लाइब्रेरी से लौटते हुए जब भी किसी लड़की पर पड़ती तो इसके कानों में गूंजने वाली आवाज इसे नजर झुकाने पर मजबूर कर देती। वो अपने पैरों की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि एक लड़के से टकरा गया। उस लड़के ने गुस्से से कहा कि मसला क्या है भाई। इसका जी चाह रहा था कि एक मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए कहे कि मैं नहीं देख रहा था तो देख लेता। आवाज मर्दाना थी मगर अल्फाज वो जब्त करके रह गया। उसकी पहली मोहब्बत की यादगार फकत चंद अल्फाज ही तो थे कि उल्लू मसला क्या है भाई। तो नाजरीन, आज की कहानी का हम इख्तिताम कर चुके हैं। ऐसे बहुत से दोस्त कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में ऐसी मोहब्बत करते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। तो सामईन, आज की कहानी आपके सामने लेकर आने का फक्त यही मतलब था कि आप बेबुनियाद मोहब्बत मत कीजिए, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, और जब आप पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, एक अच्छी पोजीशन में होंगे, तो आपको जो आप चाहते होंगे आपके साथ वो लड़की शादी करने के लिए तैयार होगी। तो आप इससे पहले कोई गलत रास्ता इख्तियार मत करें। तो सामईन, अगर आपको हमारी ये एक छोटी सी काविश पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, और नई आने वाली वीडियो तक के लिए अपना और अपने साथ अजीज़ व क़रीब, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।